Hello students, my name is Dharmender Kumar, Assistant Professor in Rameshwari Teacher Training Institute, Shadabai. Today I am going to teach you the subject teaching of English. First of all, we would start from the unit number 1, and in unit number 1 there is a chapter under the title, that is Issues of Learning English in a Multilingual Society. Today, English is the most commonly spoken language worldwide. अर्थात अंग्रेजी को पूरे विश्व में बोला जाता है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली एक भाषा है. It has become the most popular language. Time to time, many commissions and committees have given their suggestions for teaching and learning English language. In spite of the measures taken, English language learning has many issues which need to be resolved. सबसे पॉपुलर भाषा होने के नाते पूरे भारत में टाइम टू टाइम अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी किस लेवल के बच्चों को पढ़ाई जाए, क्या उसमें पढ़ाया जाए, इन सब के लिए अलग अलग कमीशंस बने, कमेटियां बनी, और उसके बावजूद उन्होंने जो सजेशंस दी, फिर भी हमारे देश में अंग्रेजी को पढ़ाने के पीछे बहुत सारे इश्यूज़ अभी भी देखने को मिलते हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है. Some of these major issues of English language learning in a multilingual society are: at what level English language learning should be introduced. सबसे पहला जो इशू है, प्रॉब्लम है, वो ये है कि अंग्रेज़ी को किस स्तर से पढ़ाना शुरू किया जाए. At what level English language learning should be introduced. What should be the medium of instruction at various levels. जो बच्चे की डिफरेंट एजुकेशन की स्टेजेस होती है, जैसे प्राइमरी स्टेजेस, एलिमेंट्री एंड हायर लेवल, तो उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, वह कौन सी भाषा होनी चाहिए, ये भी एक इशू हमारे सामने है. प्रॉब्लम ऑफ एसेंट, और जो एसेंट में अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम भी आमतौर पर हमारे मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में अक्सर देखी जाती है. तो ये मुख्यतः 3 तरह के हमारे पास इश्यूज़ हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी should have the knowledge about multilingual society. That what is multilingual society? A person who has the knowledge of many languages. आदमी या सोसाइटी जिसके पास बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, and can efficiently use any of these languages whenever required. जब ज़रूरत पड़ती है उसे, तब वो अपने हिसाब से भाषा को इस्तेमाल करता है. is known as multilingual. उसे हम मल्टीलिंगुअल कहेंगे, जिसे बहुभाषिक भी कहते हैं. Similarly, a society where many languages are used is called as a multilingual society. पहले हमने देखा कि एक आदमी जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है उसे मल्टीलिंगुअल कहते हैं, और जो दूसरा सिमिलरली ऐसी सोसाइटी जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम मल्टीलिंगुअल सोसाइटी कहते हैं. In India, around 200 languages are spoken by its people. भारत में 200 से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल लोगों के द्वारा किया जाता है. So let's discuss about issues of learning English in a multilingual society. Issue of medium of instruction. It has been a topic of controversy since a long time that whether English should be the medium of instruction in a multilingual society like India. India being a multilingual society have people who use many languages, but it is generally agreed that students have good command over their mother tongue. That's why this is very important.
to decide what should be the medium of instruction in our schools. Second one is level of introduction of English. The level at which learning of English should be introduced had also been an issue of discussion. Some linguistics are in favor of introduction of English only after the child has acquired sufficient proficiency in mother tongue. Introducing second language at early stage could interfere in the learning of mother tongue also. Next, issue of accent. इशू ऑफ एसेंट, इसमें हम प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे. इसमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं. एसेंट इन अ लैंग्वेज इज ऑलवेज डिफरेंट दैन इन द अदर लैंग्वेज. द डिफरेंस इन एसेंट ऑफ पंजाबी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी टेकन एज एन example. There are various reasons because of which the issue of accent of English has surfaced in multilingual societies. Some of the reasons are discussed here. English language itself has more than one accent. For example, one is American and other is British pronunciation. Both are different in the way of pronunciation. दोनों को अलग अलग तरह से प्रोनाउंस इसमें भाषा को किया जाता है. The accent in mother tongue and other languages already learned by a student is different than accent in English. बच्चा जो मदर टंग सीखता है वह ऑलरेडी डिफरेंट होती है जो उसकी टारगेट लैंग्वेज होती है जो कि इंग्लिश है. प्रॉब्लम ऑफ द एसेंट ऑन द सिलेबल ऑफ अ वर्ड. अब सिलेबल की अगर हम बात करते हैं तो सिलेबल में शब्दों को किस किस तरह से जोड़ के पढ़ा जाता है. हर भाषा में ये अलग तरह का एक सिस्टम होता है. लैक ऑफ टीचर्स हैविंग नॉलेज ऑफ प्रॉपर इंग्लिश एसेंट देमसेल्व्स. कई बार टीचर्स ऐसे होते हैं जिनमें जो प्रोफिशिएंसी होती है प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग उसमें कमी देखने को मिलती है. अगर टीचर को लैंग्वेज के रिगार्डिंग नॉलेज वीक है तो उस परिस्थिति में भी हमारे सामने एक इशू बन जाता है जो कि कॉमनली देखा जाता है मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में. नाउ नेक्स्ट, इंडिया अ मल्टीलिंगुअल country. As you all know that in our country there are many languages spoken by its people. India is a big country with huge population. According to most recent UN data, it is estimated to be 1.35 billion. It is a country where 22 official recognized languages are mentioned in its constitution. Different regions have different regional languages in India. Indian population is diverse in terms of geography, politics, society, religion and language. This diversity is the root cause of multilingualism in India. Next, need of multilingual approach in language teaching. In a country like India, use of language other than mother tongue creates psychological barriers. Use of foreign languages makes learning a different task. Students in multilingual classes speak different language. ये हम सभी देखते हैं कि मल्टीलिंगुअल जो क्लासरूम्स होते हैं जहाँ पर बच्चे बहुत सारे भाषाओं को बोलते हैं तो वहाँ पर भी टीचर के लिए एक चैलेंज वो हो जाता है कि टारगेट लैंग्वेज को किस तरह से सिखाया जाए क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारी भाषाएं होती है. स्टूडेंट्स आर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स. सभी बच्चे कई तरह के बैकग्राउंड से आते हैं. मदर टंग कैन सपोर्ट टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टू सम एक्सटेंट. दिस अप्रोच कैन हेल्प टू रिजॉल्व द क्लासरूम कन्फ्लिक्ट्स. इसी अप्रोच से क्लासरूम में जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको दूर किया जा सकता है. नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ टीचर इन मल्टीलिंगुअल इंडियन क्लासरूम्स.
मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए या कैसा होता है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। टीचर शुड पे पर्सनल अटेंशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग इन द क्लास। टीचर को क्लासरूम में बच्चों की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको दूर करने के लिए हमेशा ध्यान देना चाहिए। टीचर शुड फॉलो suitable methods and setting of classrooms for addressing the needs of multilingual students। अब टीचर को क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको जो सूटेबल लगे इस तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको लर्निंग के रिगार्डिंग उनकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाया जा सके। टीचर कैन कंसल्ट फेलो टीचर्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। जो फेलो टीचर्स होते हैं उनके साथ उनको कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। टीचर कैन मेक यूज़ ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़ फ्रॉम होमोजेनियस ग्रुप, प्रिपेयर मल्टीलिंगुअल मटेरियल्स, यूज एग्जाम्पल फ्रॉम different languages, and provide opportunities to students for practicing content in mother tongue as well as in English। बच्चों को मौका देना चाहिए ग्रुप डिस्कशन करने का, उनको किसी टॉपिक को अपनी भाषा में समझने का, ताकि वो टारगेट लैंग्वेज को आसानी से सीख सकें। टीचर कैन इनवाइट स्टूडेंट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसके माध्यम से बच्चे ग्रुप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अपने जो व्यूज़ है उनको शेयर करते हैं, जिससे कि भाषा का ज्ञान बच्चों में बढ़ जाता है। मेक यूज़ ऑफ वेरियस अदर टेक्निक्स टू encourage use of English and create many social situations to enable students to unconsciously practice different linguistic skills। तो इस तरह से हम अपने जो भी एक टीचर का रोल है उसको डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में जो क्लासरूम्स होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उनको किस तरह से हम अच्छी टेक्निक्स के माध्यम से, टीचिंग एड्स के माध्यम से, टीचिंग मेथड्स के माध्यम से उनमें लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।